Welcome back. And we were talking about the terms like idea, concept, model and theory. In concepts को एक overview में देखने के बाद, I'm referring you a very important book. Perhaps this is the best book related to our topic of discussion, जो आज का है organization theory का. This book is written by John Macaulay et al. And it is talking about the challenges and perspectives related to the organization theory. So let me just go through the overview of this book, and then I'll be discussing कि इस book के हवाले से हमारे पास जो details हैं related to our topic वो किस तरह से develop वो हो रही हैं. So when you talk about this particular book, there are different comments written about this book, and it is said that this new textbook usefully situates organization theory within the scholarly debates on modernism and postmodernism. Okay, अब इस तरह के बहुत से एक्सप्रेशन अभी हमने गो थ्रू करने हैं, जिसमें कि क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, नियो मॉडर्न थ्योरी, नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स, इन तमाम चीजों को भी हम गो थ्रू करेंगे. एंड प्रोवाइड्स एन एडवांस्ड इंट्रोडक्शन टू द हेट्रोजीनियस स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्लूडिंग चैप्टर्स ऑन फेनोमेनोलॉजी, क्रिटिकल थ्योरी एंड psychoanalysis. Okay, so these are the expressions जो हमें समझने होंगे कि what do we mean by phenomenology, what is critical theory, what is psychoanalysis. Like all good textbooks, the book is accessible, well researched, and readers are encouraged to view chapters as a starting point for getting to grips with the field of organization theory. ओके, सो बहुत सारी एक्सप्रेशंस यहाँ पर दर्ज हैं, वो आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर सीन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू इट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स, ताकि हमारे जहन में एक आइडिया डेवलप कर जाए कि किन टॉपिक्स पर हमें डिस्कशन करनी है. स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, व्हाट इज इट एंड व्हाई डज इट मैटर, यहां से हम बात को शुरू करेंगे. Then we'll be talking about modernist organization theory, which is basically back to the future context. Then we'll be talking about neo-modernist organization theory, which would be talking about putting the people first. Then neo-modernist organization theory would be talking also about the surfacing the new waves. Post-modernist organization theory, इसके ऊपर हमारी discussion चलेगी, जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशंस की जो न्यू फॉर्म्स न्यू मिलेनियम में इवॉल्व कर रही हैं उनको हम मैनिफेस्ट होता देखेंगे. देन पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए फिलॉसफी, द अल्टीमेट चैलेंज टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसके ऊपर बात होगी. रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, सिंबल्स, मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस. रिफ्लेक्सिव ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इन्वॉल्विंग क्रिटिकल थ्योरी एंड साइकोएनालिसिस, इसके ऊपर हम बात करेंगे. Then we'll be talking about the evolution of management as reflected through the lens of modernist organization theory, or towards the end we'll be talking about the perspectives and challenges. So these are the issues जो मैंने कोशिश की है कि आज आपकी डिस्कशन में मैं लेकर आऊं. So इन टॉपिक्स को अब हम जितना बेहतर अंदाज में एक मुख्तसर टाइम के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, we'll be trying our level best to discuss these. यहां पर मैं इस बुक का ये शेयर आपके साथ ऑफ कर रहा हूं, and I'm moving towards the sharing of my slides. Okay, dear. I hope the slide is visible and my voice is audible. अब चूंकि हमने प्योरली थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज का जो एक पर्सपेक्टिव है, जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हमने एलैबोरेट करना है. तो जो बुक अभी आपको मैंने दिखाई जॉन मैकॉले की, उसमें थ्योरीज को किस तरीके से एलैबोरेट किया गया है. सो आई हैव टेकन सम एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम दैट बुक which are written in the chapter number 1, that how the theories are manifested. For example, it is said that theories are linguistic conceptual devices that try to tell us things about the world by representing it in a causal manner. Okay, जिसमें हम एक pros and cons के हवाले से एक cause and effect relationship के context में चीजों को visualize करते हैं. In the case of any social science theory, including organization theory, this is to do with the behavior of people in various social contexts. Okay, तो ये पहला expression हमारे पास आ गया कि theories are linguistic, conceptual devices.
Second expression, which is very important, and I typically like this expression the most, it says that theories define, classify or categorize aspects of the world. अब चाहे वो आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो, चाहे आप एक सोशल सेटअप की बात कर रहे हो, theories define, classify और categorize aspects of the world. और उसमें किस चीज को theories particularly define, classify और organize करती हैं? They are what of that which we are studying. So जैसे हमारे पास expression of W's है, what, when, where, why, how, who. So theories इन तमाम expressions को अपने अंदर incorporate करती हैं. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने देखा कि थ्योरीज डिफाइन, क्लासिफाई और कैटेगराइज कर रही हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द व्हाट ऑफ दैट व्हिच वी आर स्टडीइंग. द थर्ड एक्सप्रेशन वी हैव इज थ्योरीज प्रपोज रीजंस. ओके, जैसे भी हमने बात की थी कि आपको लॉजिक्स एंड रीजंस पर बात करनी है, तो थ्योरीज प्रपोज रीजंस इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ओके, जिसको हम वो फिश बोन डायग्राम के अंदर भी डिस्कस करते हैं. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स दैट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिनन, कि किसी भी अमल में, किसी भी काम में, किसी भी हैपनिंग में कहां पर क्या क्या तब्दीलियां क्यों कर रूनुमा वो हो रही हैं. सो इस चीज को कंप्रीहेंड करने के लिए वी यूज द वर्ड थ्योरीज. ओके, एंड सेम वुड बी द कॉन्टेक्स्ट जो भी हम चलकर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों, कब, कहां, कैसे वो डेवलप की जाती हैं और उनकी डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. सो दोबारा से ये थर्ड पॉइंट मेरे साथ देखिए. Theories propose reasons in the form of cause and effect relationships that explain the variation of a particular phenomenon in terms of the effects of the action of or the variation in another phenomenon. हम डिफरेंट फिनोमिनास को भी आपस में रिलेट करके उसके ऊपर एविडेंस क्रिएट करके एक थ्योरी को जनरेट वो कर सकते हैं. सो दिस वुड बी एड्रेसिंग व्हाट? दिस वुड बी टिपिकली एड्रेसिंग द व्हाई एंड द हाउ. अब हमारी तीन बातें कवर हुई. एक हमने कहा दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, देन वी आर सेइंग दैट इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई एंड द हाउ. ओके, सो थ्योरीज आइडेंटिफाई द सिचुएशन. मैं फोर्थ पॉइंट आपके साथ पढ़ रहा हूं. थ्योरीज आइडेंटिफाई द सिचुएशंस or contexts when these causal relationships will or will not operate. तो थ्योरी हमें यह भी बताती है कि कहां पर ये रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश हो पाएंगे और कहां पर ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जब कॉन्टिजेंसी थ्योरीज की बात करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो वहां पर विल बी सीइंग कि किस तरह से डिफरेंट जो कॉन्टिजेंसी वेरिएबल्स हैं वो इन कॉजल रिलेशनशिप्स को जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की डेवलपमेंट पे हमारे साथ अवेलेबल हैं वो कहां पर मजबूत कर रहे हैं और कहां पर वीकन कर रहे हैं. ओके, तो फोर्थ पॉइंट को फिर से देखिए कि थ्योरीज आइडेंटिफाई द सिचुएशन or context when these causal relationships will or will not operate and thereby set the boundaries to where they are applicable. Fifth expression जो आपकी बुक मैंने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से पिक किया, written by John Macaulay, वो कहता है कि based upon this what, why, how, when and where analysis, theories then can guide our actions because they enable predictions and hence potentially enable us to anticipate and try to influence or even control events. Okay, so that is one of the reasons कि आपको मैंने रिसर्च में भी कहा था कि rather than putting your own experiences, you come up with development of and arguments related to the theories, okay, the proven concepts. So जब हम why, what, who, how, where, इन तमाम चीजों को थ्योरीज की मदद से एलेबोरेट कर पाते हैं तो हमारे लिए बात के अंदर वजन, बात के साथ एविडेंस रिलेट करना वो ज्यादा आसान हो जाता है. So by intervening and changing the explains, which is basically talking about the independent variable, the explanandum, which is the dependent variable, should also change in a manner predicted by the theory provided that the theory holds. ओके, सो हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई का, ये जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एक्सप्लेन्स एंड एक्सप्लेनेडम्स, इनको भी एलैबोरेट करने के लिए हमारे पास जो रीजन और लॉजिक आती है दैट इज थ्रू द थ्योरी, बिकॉज थ्योरी इज समथिंग जो कि ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट के तौर पर हमारे पास मौजूद होगी. ओके, द सिक्स्थ एक्सप्रेशन आई हैव कोटेड फॉर यू. In the context of theories, it says that theories are not divorced from our everyday lives and behaviors.
Indeed, we regularly deploy theory, often in the form of common sense. Now, this is another matter कि जिसको हम common sense कह रहे हैं, that is very uncommon these days. लेकिन इसके बावजूद जो theory हैं, they are basically the demonstration of many theories are demonstration of our everyday life, and they are also part of our common sense in order to make sense of our experiences and to guide our actions. But this process is usually tacit. Okay, हमारे जहन में ये सारा प्रोसेस वो चल रहा होता है because the use of theory remains unnoticed. तो रोजमर्रा के कामों में भी हम बहुत सी थ्योरीज को यूज वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसका इजहार उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर वो नहीं कर पाते. सो सेवंथ एक्सप्रेशन जो आपकी बुक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के स्टार्ट में जॉन मैकेले ने प्रेजेंट की, एंड दैट सेज दैट थ्योरीज मैटर बिकॉज दे इन्फ्लुएंस व्हाट हैपेंस टू पीपल. Okay, because theories जो हैं वो proven facts हैं, तो they influence what happens to people. They are used to describe, explain, and equally significantly justify the things that we do and how we do them. Therefore, we need to be very careful about the theories we use to make sense of what it is we think is going on. तो आप ये भी कह सकते हो कि theories are basically sense making. Okay, ये बहुत important expression है. Theories we use to make sense of what it is we think is going on, particularly when people present things as there is no alternative. Okay, तो किसी भी phenomena को, किसी भी working को, किसी भी practical manifestation को demonstrate करने के लिए with proven facts and concepts हमारे पास जो एक available scenario है, that is what we call a theory. अब हमारी जो इंट्रोडक्शन है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करने हैं ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की फिलोसॉफिकल डिस्कशन है वो इजीली आप कंप्रीहेंड कर सको. सो उस मकसद के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशंस मजीद यहां पर हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर कंटेंट्स को शुरू कर रहे हैं. एंड दोस टू कॉन्सेप्ट्स आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्ट्स और वेरिएबल्स. ओके, हम अक्सर औकात अपनी जनरल टॉक में, रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, बट मेनी अ टाइम्स आई हैव फाउंड कि मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड इन दीज एक्सप्रेशंस. सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स. ओके, तो हमारी जो कोशिश हुई है अभी तक वो ये कोशिश है कि हम आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं, हम थ्योरीज एंड मॉडल्स को समझ पाएं, हम हाइपोथेसिस को समझ पाएं कि उसको किस तरीके से हम टेकअप करते हैं, और साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें ताकि हमारा जो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूशन अपना वो दे सके. सो जब आप वर्ड यूज करते हो कंस्ट्रक्ट्स, सो रिमेंबर दैट कंस्ट्रक्ट्स आर ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स. अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या था? ये आइडिया की एक रिफाइंड फॉर्म थी. ओके, तो अब इसको हम यहां पर ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट्स आर ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स फॉर अ स्टडी. ओके, तो अब एक कॉन्सेप्ट में हमारे पास मोर देन वन कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है. तो कंस्ट्रक्ट्स कैन बी conceptually defined in that they have meaning in theoretical terms. They can be abstract and do not necessarily need to be directly observable. ठीक है, अब एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट की किस तरह होंगी? एग्जांपल्स कैन बी इंटेलिजेंस, ये एक कंस्ट्रक्ट है. एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये एक और कंस्ट्रक्ट है. ओके, तो अब ये भी मुमकिन हो सकता है हमारे पास कि एक कंस्ट्रक्ट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एलैबोरेट हो रहे हो, और ये भी मुमकिन है कि बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हम एक कंस्ट्रक्ट के अंदर समराइज करके भी प्रेजेंट करने की कोशिश वो कर रहे हो. तो कंस्ट्रक्ट बेसिकली होगा क्या? कंस्ट्रक्ट जो है वो हमारे थ्योरेटिकल टर्म्स को मेजरेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कंसेप्चुअल एक्सप्रेशंस हैं. जिसके बरक्स जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय डेवलपिंग द कंस्ट्रक्ट इनटू अ मेजरेबल फॉर्म. तो कंस्ट्रक्ट्स मोस्टली आर क्वालिटेटिव, और उन क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्ट्स को, उन कॉन्सेप्चुअल फ्रेम्स को जब हम मेजरेबल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करें तो दैट वुड बी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेरिएबल. सो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय डेवलपिंग द कंस्ट्रक्ट इनटू ए मेजरेबल फॉर्म. फॉर एग्जांपल, वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन correspond to any characteristic that varies, meaning they have at least two possible values. ओके, तो एक कंस्ट्रक्ट में अगर कोई एक चीज ज्यादा है, एक चीज कम है, जैसे भी हमने यहां पर एग्जांपल देखी इंटेलिजेंस, तो अगर इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है तो हाई इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस, ये वेरिएबल्स बन जाएंगे हमारे पास कि जब हम इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं.
बिल्कुल इसी तरह एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अगर एक कंस्ट्रक्ट है तो लो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये हमारे पास वेरिएबल्स वो बन जाएंगे. सो वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन correspond to any characteristic that varies. ओके, जिसमें के कोई चीज तब्दील होती नजर आए, मीनिंग दे हैव at least two possible values. For example, variables may include height in inches or ages of employees. इस तरह के जो expressions होंगे जिनको हम quantity में measure कर सकते हैं, they are taken up as variables. So अभी तक हमारी जो डिस्कशन चली, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं. मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं रिकैप करवा सकूं अबाउट द आइडियाज रिलेटेड टू व्हाट थ्योरीज आर, हाउ कॉन्सेप्ट्स आर डेवलप्ड, व्हाट आर हाइपोथेसिस, व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स. और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि थ्योरीज की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर कहां पर क्या क्या इश्यूज हमारे सामने वो आ सकते हैं. यहां से अब हम अपने कंटेंट ऑफ द चैप्टर के ऊपर पहुंचते हैं. और इसके आज के हमारे इस मॉड्यूल में विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. ओके, इन द लाइट ऑफ अभी जो मैंने स्टार्टिंग में एक आपके साथ एक्सप्रेशंस बिल्डअप किए, इन सब को अब हम यूज करेंगे एंड विल बी सीइंग कि इन तमाम चीजों की डेमोन्स्ट्रेशन हमारे इस सब्जेक्ट फील्ड के अंदर किस तरह से मैनिफेस्ट वो हो रही है. A very interesting statement I was able to sort out, which is given by Kurt Lewin. Kurt Lewin is the same person जिसने के चेंज मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सा काम वो किया हुआ है. So उसका एक एक्सप्रेशन मेरे पास आया बहुत इंटरेस्टिंग सा. And the Kurt Lewin said that there is nothing so practical as a good theory. Okay, as you could remember कि हमने अपनी स्टार्टिंग डिस्कशंस में भी बड़ी बहस की थी कि थ्योरी और प्रैक्टिस में वो क्या फर्क है. So उसी पॉइंट को मैं यहां पर दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि there is nothing so practical as a good theory. So it's a quotation given by Kurt Lewin. This was just for the opening of our talk. अब हम अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आते हैं. It is said कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे टेक्निकली स्पीकिंग, तो उससे मुदर्जा झैल सवालों के जवाब वो हम ढूंढ पाएंगे. ओके, as it is said that mainstream organization theory attempts to provide answers. और वो typical जो questions हमारे पास आ रहे हैं, those typical expressions are that how and why do organizational forms vary and change at particular points in time. ओके, सबसे पहला जो हमारा कंसर्न होगा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड, वो इस बात को एड्रेस करेगा कि हाउ एंड व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स वेरी एंड चेंज एट पर्टिकुलर पॉइंट्स इन टाइम. ओके, नो डाउट एज some of you are giving the expression कि Kurt Lewin said this sentence 69 years back, but the issue is कि आपको अभी इस एक्सप्रेशन के 2020 के अंदर जो रिसर्च हमारे सामने आ रही है, मैं उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन वो दिखा पाऊंगा. So you will be knowing कि concepts बहुत से ऐसे हैं which are classical and which are evergreen. उनको चाहे 69 years गुजरे हो या 169 years गुजरे हो, they are still applicable with 100% practicality. So mainstream organization theory attempts to provide answers. जैसा आपने पहला सवाल देखा कि how and why do organizational forms vary and change at particular points in time. Number two, how do these different organizational forms impact upon the behavior of their members. Okay, इस सवाल का जवाब हम ढूंढ पाएंगे. The third mainstream organization theory का जो हमें फायदा मिलता है, वो इस थर्ड क्वेश्चन को एड्रेस करके हम अपने आंसर्स ढूंढ पाएंगे कि what are the practical implications of questions 1 and 2 for the effective and efficient management of organizations. ओके, तो जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को which might be given जैसा ये स्टेटमेंट में भी है 69 years back, जब हम इसको गो थ्रू करेंगे तो we'll come to know कि इससे हम आज की दुनिया में 2021 में हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से बुरुएकार वो ला सकते हैं. And the fourth expression we need to talk about related to the organization theory and need to find the answers of these questions, वो ये है कि how can organization theorists design their research and communicate their findings so that it is perceived as relevant to the problems faced by practicing managers and is accessible to them. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जिसमें हम as
like the people who are developing the theories, हम इस बात को मैनिफेस्ट करेंगे कि हमारी डेवलप करदा जो एक थ्योरी है उससे प्रैक्टिकली मैनेजर्स अपने फायदे को कैसे इनकॉर्पोरेट वो कर सकते हैं। अब इन सवालों की जब हम जुस्तजू शुरू करेंगे, इनको जब हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारे पास एक पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो मौजूद होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ थॉट का। अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हम कुछ हेल्प लेंगे फ्रॉम द फिलॉसफी, ओके, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ फिलॉसफी इंपैक्ट्स अपॉन मैनेजमेंट रिसर्च एंड बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ओके, अब यहां पर हमें कुछ फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस को समझना है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की जो मैनिफेस्टेशन एंड इंप्लीकेशन है उसको प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट वो कर सकें। बिकॉज वेरी सून जब अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के जो कोर टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने शुरू करूंगा तो यू विल फाइंड इट लाइक इनएविटेबल कि इन एक्सप्रेशंस के बगैर हम उन कोर टॉपिक्स को कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकते। So how philosophy impacts upon management research and building organizational theory, उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम फिलोसफी को एलैबोरेट कर रहे हैं कि फिलोसफी इज बेसिकली इंक्वायरी अबाउट रियलिटी, द वे आई सी अ रियलिटी वुड बी बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन माय फिलोसफी। और इसके तहत हमारे पास दो स्कूल्स ऑफ थॉट वो डेवलप होंगे, वन इज द पॉजिटिविज्म एंड द अदर इज इंटरप्रेटिविज्म। जब हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच को वो लेकर चलेंगे इन फिलोसफी तो हमारा कंसर्न ये होगा कि द पीपल हु आर गोइंग टू फॉलो द पॉजिटिविस्ट अप्रोच दे से कि इट गिव्स वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी टू आवर रिसर्च। ओके, तो जब हम ऑब्जेक्टिव मेजर्स की बात करें तो बेसिकली हमारा जो स्टांस है दैट इज पॉजिटिविस्ट। इट इज बेस्ड ऑन प्रिसाइज मेथड्स एंड कैन सपोर्ट आवर रिसर्च विद स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमेशा हमें तमाम डिटेल वो शायद नहीं बता सकेंगे। अ वेरी फेमस कोट गोज एंड इट सेज दैट नंबर्स कैन नॉट टेल द होल ट्रुथ। ओके, तो हम हर सोशल फिनोमेना को, हम हर क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव को शायद ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट वो ना कर पाए। सो होगा क्या कि द पीपल हु आर गोइंग टू फॉलो दिस अप्रोच ऑफ पॉजिटिविज्म दे लैक बेसिकली व्हाट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज वो सिर्फ नंबर्स की गेम में उलझ कर रह जाते हैं। यू कैन नॉट कैप्चर द फुल रिचनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द एनवायरमेंट। तो बहुत सी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको आपकी पॉजिटिविस्ट अप्रोच स्टैंड अलोन तौर पर शायद कंप्रीहेंड ना कर सके। सो यहां पर जब हम पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कंसर्न होगा इट वुड बी मोर डिटर्मिनिस्टिक व्यू। ओके, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पीपल आर बेसिकली सोशल प्रोडक्ट्स। तो जब हम डिटर्मिनिस्टिक व्यू की बात करेंगे तो जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो हमारी चैलेंज हो जाएगी। ओके, वेयर एज हर चीज को हम शायद अपने महदूद नॉलेज की वजह से डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के तहत इवैल्यूएट ना कर पाए। तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, सेकंड अप्रोच जो हमारे पास फिलोसॉफिकल असम्पशंस में आती है एंड दैट इज इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। सो इंटरप्रेटिविज्म में यह कहा जाता है कि इट गिव्स यू ऑप्शंस। यहां पर हमारे पास सब्जेक्टिव मेजर्स होंगे। सो पॉजिटिविज्म में जैसा आपको कहा कि ऑब्जेक्टिविटी इज द मेन स्टांस, तो इंटरप्रेटिविज्म में वी हैव द सब्जेक्टिविटी एज द मेन स्टांस। ओके, सो गिव्स यू ऑप्शंस, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड दिस इज हेल्दी फॉर सोसाइटी। ओके, सो यहां पर हमें फायदा ये मिल जाता है कि हम अल्टरनेटिव्स जो हैं वो अपने बढ़ा सकते हैं। You can have access to different aspects of reality. हम रियलिटी के बहुत से ऐसे पहलुओं को भी देख पा सकते हैं कि जिन पहलुओं को शायद नंबर्स एलैबोरेट वो ना कर पाए। So the individual is an active agent, जिसके तौर पर हम